some very exciting activities like colorful art and craft, dance, music, and we are surely going to be more confident as we learn to speak better English. So, to one and all present here, greetings of the day. So, first of all, I would like to welcome to this very energetic and charming morning. Can we have a huge round of applause for all yourself? Living values reduce the greatness in and give the significance to human life. जीवन मूल्य इंसान को महान और सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन अध्यात्म के बिना अनाथ और दिशाहीन हो चुका है। अध्यात्म और जीवन मूल्यों को मानव जीवन में उतारने का प्रयास पिछले 80 वर्षों से किया जा रहा है with the elevated feeling of one God and one world family. From humble beginning since 1936 to a global organization of over 9,000 centers in 135 countries and 1 million students worldwide. Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya is a unique Vishwavidyalaya. It is a well-known spiritual, value-based organization which has gained the global acceptance and unique international recognition as well. So, Pandav Bhavan at Mount Abu, Rajasthan is the headquarters of our Vishwavidyalaya. And in order to build the value-based society, different conferences and different seminars at national and international levels are organized over the last 85 years. So, in this line, we got in 1981 University received the recognition as non-governmental organization, that is NGO at United Nations, and after that in 1986 as well, UN honored the Vishwavidyalaya with the 7 Peace Messenger Award, and after that the Commonwealth of Russia has granted the official recognition to Brahma Kumaris. समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, चाहे वह महिलाएं हों, युवा हों, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एज वेल. 30 different departments are made to serve these people, and especially in education and youth wing, this wing is specially made to give the value-based education and the value-based society. This wing especially gives the training to the coordination of Annamalai University, with the Brahma Kumari giving the degree of MSc and diploma as well, which all you can also complete. With the spirituality as well, you can complete your education as well. And for the student, we have the program like Touch the Light program, which is made for class 6 to 12 students, in which we give the value-based education, and Brahma Kumari teachers also visits to school on daily basis so that they can contribute in value-based society. So I just want to say that regardless of religion, caste, age and language, anyone can receive the great benefit from this spiritual knowledge. Now I would like to share some thought about the guest here, our respected Brahma Kumari Roshni Devi. We have many centers in Hardoi as well, at Jyotinagar Center and Civil Line, which is in front of Company Garden, in which our Didi, Honorable Didi, give the services over last 25 years. हरदोई में बहुत अलग-अलग प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम करके उन्होंने एक आध्यात्म की अलग जगाई है. वीरांगना की धरनी झांसी में पैदा होने वाली दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर हरदोई जैसे स्थान पर आध्यात्मिक अलग जगाई. दीदी ने अब तक लाखों लोगों के अंदर आध्यात्म का प्रकाश फैलाया है और हजारों कार्यक्रम करके मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. Now, I would like to say in last just few lines that कोई अंधेरा न रोक सके, कोई अंधेरा न रोक सके, वही ज्ञान सूर्य परमात्मा का पवित्र प्रकाश
प्रकाश हैं आप, पवित्र प्रकाश हैं। Our respected Brahma Kumari Roshni Didi. Can we have a huge round of applause? सभी को ओम शांति स्वीकार हो। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, वैल्यूज़ की बात करेंगे, पॉजिटिविटीज़ की बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ, नए पंख लगा करके हम जो करना चाहे वो हम कर सकते हैं। क्योंकि युवा हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है, एक हमारे देश का सबसे बड़ा भविष्य है। तो ऐसे युवाओं को जगाने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हर एक युवा को जगाना है, उसकी पावर को बाहर निकालना है। तो आज हमारा जो थीम रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, वो है कि हम डिस्कवर द हीरो विदिन, कि हम अपने अंदर के हीरो को कैसे जगाएं, अपने अंदर की पावर को कैसे जागृत करें। उससे पहले हम चाहेंगे कि अभी हम 2 मिनट साइलेंट मेडिटेशन करके पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए इस प्रोग्राम को आगे शुरुआत करते हैं। इसलिए सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं सीधे, और सभी ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स हो जाए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। रिलैक्स, मन शांत, मन को चारों ओर से हटाकर सिर्फ अपने अंदर की ओर झांकना है, अपने अंदर की ओर देखना है। रिलैक्स, ओम शांति। सभी अपनी आइज ओपन करें और अब सुनेंगे इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान यहीं पर लगाकर, क्योंकि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें हमारा ध्यान एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ हमारे अंदर तक जाएगी। तो उसे अंदर लाने के लिए हमें चारों तरफ से अपने ध्यान को समेट करके सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, मुझे अपने अंदर के हीरो को आज जगाना है। उसके लिए मुझे स्वयं से बात करनी है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्टिव चीज़ क्या है जो कि हमारे पास भी क्या है? बोलेंगे, बोल सकते, कोई बात नहीं, गलत होगा कुछ नहीं जी। मानव और विवेक। ओके, नेक्स्ट आत्मविश्वास, चरित्र, गुण और जी मन। वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड। उनके लिए क्लैपिंग करें एक बार। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है, सबसे बड़ी चीज़ है,
वो है हमारे विचार, हमारी संकल्प शक्ति। इस संकल्प शक्ति से हम जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी काम दुनिया में असंभव नहीं, सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप सब देखते हैं कि आज साइंस ने जो गूगल हमें दिया है, इंटरनेट दिया है, ये सब किसने बनाया है? संकल्प शक्ति ने। क्योंकि उनको विचार आया कि हमको ऐसा करना है, तो उस काम के लिए उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ वो काम किया। तो वो इतना सुंदर, जो आज पूरी दुनिया को हर चीज का जवाब गूगल में जाकर मिल जाता है। तो वो पावर कहाँ से आई? यहाँ से। हमारी विचार संकल्प शक्ति दुनिया में जो हम सोचेंगे वैसा हम अपने आप को बना सकते हैं। हम जो बनना चाहते हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम वो भी बन सकते हैं। हम बुरा बनना चाहते हैं, वो भी हमारे ही हाथ में है या नहीं? हमारे हाथ में है सब कुछ। हम जो बनना चाहते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है, क्या बनना है, वो सब कुछ आपके यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई चीज ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो आपके लिए कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, वो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि सोचने को तो सभी सोचते हैं कि हमें अच्छा बनना है। कौन नहीं चाहता है कि मेरे को ये बनना? सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं वो चीज को हम लगातार एक बार पूरा काम उस पर नहीं करते हैं। हम उस चीज को थोड़ी देर के लिए संकल्प आता है, विचार आता है मुझे ये करना, फिर हमारा दिमाग कहीं और बातों में चला जाता है। हम कुछ और सोचने लगते हैं और धीरे धीरे फिर हमारा ध्यान यहाँ से डाइवर्स होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हम बार बार अलग अलग सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज पर पूरा ध्यान, जैसे कि अर्जुन को दिखाते हैं, अर्जुन का पूरा ध्यान कहाँ पर था? पेड़ के ऊपर। कौन था? चिड़िया। चिड़िया के पंख भी थे, बहुत सारी चीजें उसके हाथ पैर सब कुछ थे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ था? चिड़िया की आंख की पुतली पर, पूरा उस पंख पर ध्यान था। तो ऐसे ही जब वो उस एकाग्रता से तीर चलाते थे तो तीर बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाता था जहां वो चलाना चाहते थे। तो आज हम सबकी वो एकाग्र शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है कि हम चाहते तो हैं कि हमारा मन एकाग्र हो, हम पढ़ाई करें, हम ये करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है, मन नहीं लगता है, मन और चीजों में चला जाता है। उसका रीजन है कि हम कोई भी चीज को जो सोच रहे हैं उस चीज पर हमें पूरा अपना ध्यान लगाना है कि मुझे करना क्या है। जब मेरी एक चाहत होगी कि मुझे ये बनना है, अब मैं उस चाहत को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही सीन इमर्ज हो रहा है। वो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है या वकील बनना है या इंजीनियर बनना। मेरा सारा फोकस अपने उस पे है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मेरी ड्रेस होगी, ये मेरी यहाँ पर मेरा पॉलिशन, जहाँ मैं पढ़कर तैयार होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ उस जगह पर मैं जाऊँगा, वो मेरी ऐसी मेरी लाइफ होगी, इतना मेरा ये जीवन होगा। सब कुछ मुझे वैसे ही वैसे देखना है। और जैसे जैसे हम उस सीन को देखना शुरू करेंगे, उस चीज को जीना शुरू करेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे आपका संकल्प पूरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको उसको पूरा काम करना है कि मुझे ये बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है। तो जैसे जैसे मैं उस चीज पर काम करूंगी वो चीज धीरे धीरे वो पूरी हो जाएगी। तो ये कौन सी ताकत है? हमारे विचारों की ताकत, संकल्प की ताकत। और ये ताकत कभी भी किसी भी समय जगाई जा सकती है। इसके लिए कोई उम्र भी नहीं है कि इस उम्र में ही जागेगी या इस उम्र में। कोई भी कभी भी कर सकता है इस
पावर का यूज, और वो है हमारी संकल्प शक्ति का प्रयोग। तो हमें आज ये सोचना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, जो मैं चाहूँगा वो मुझसे होगा। ये मुझे अपने आप में आत्मविश्वास जगाना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो पूरा होगा। पर वो पूरा हो नहीं पा रहा है, उसके लिए भी क्या करना है, हमें रोज ये मेडिटेशन यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है कि हमें अपने अंदर के हीरो को जगाना होगा। तो कई लोगों का प्रश्न आता है कि वो हीरो है कौन है अंदर, किसको जगाना है हमें? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वो हीरो है जिसको खोजना है हमें, जिसे जगाने की जरूरत है, और अगर वो जाग गया तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी खुशी, आपका प्यार, आपकी शांति, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिल सकता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। एक बार की छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं कि एक बच्चे की चाबी खो जाती है। कौन सी चाबी? जो लॉक में यूज करते हैं, वो चाबी उसकी खो जाती है। तो जैसे उसकी चाबी खो गई तो वो बच्चा अपने घर पे ना देखकर बाहर उसको ढूंढने के लिए रोड पर निकल पड़ा, और रोड पर जहां जहां लाइट चल रही थी वहां जाकर के वो चाबी को खोज रहा था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी आपसे पूछेंगे। तो जैसे वो चाबी को ढूंढने के लिए जगह जगह ढूंढता रहा, उसको देखकर बहुत लोगों ने उसके साथ कहा कि भाई आप क्या ढूंढ रहे थे? कहा चाबी नहीं मिल रही है। तो सब उसके साथ ढूंढना शुरू कर दिए, और जितने भी लोग थे सब ढूंढ रहे हैं चाबी, लेकिन चाबी किसी को नहीं मिल रही। उसी बीच में एक बहुत ही अनुभवी एक व्यक्ति वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? तो कहते हैं चाबी ढूंढ रहे ना। तो क्या चाबी गुम कहाँ हुई थी? चाबी गुम कहाँ हुई है? तो कहा चाबी तो मेरे घर के पिछवाड़े में। कहाँ गुम हुई है? घर के पीछे। चाबी वहां गिर गई। पर बच्चे से कहा फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि अंकल चाबी वहां नहीं मिल सकती क्योंकि वहां अंधेरा है और यहाँ पर उजाला है, प्रकाश है, इसलिए यहाँ पे चाबी मिल सकती है, वहां अंधेरे में थोड़ी मिलेगी। लेकिन उस छोटे से बच्चे को ये समझ नहीं है कि आखिर में चाबी जहां गुम हुई है वही मिलेगी, यहाँ नहीं मिल सकती। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो हमारे साथ, हम चाबी आपको ढूंढवा दें, कहाँ गिरी थी वहां लेकर चलो। और वो वहां लेकर जाते हैं और टॉर्च चलाते हैं, उससे वो चाबी तुरंत ही मिल जाती है। अब आप कहेंगे आपने दीदी ये बात क्यों कही? तो स्वाभाविक बात है, चाबी गुम हुई, जहां गुम हुई वही मिलेगी। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर जो हीरो है वो जहां है, हमारे अंदर प्यार भी है, हमारे अंदर शांति भी है, हमारे अंदर खुशी भी है, हमारे अंदर आनंद भी है, सब कुछ है, सारी ऊर्जा हमारे अंदर भरी हुई है। लेकिन वो ऊर्जा जो कि हम कह रहे हैं, जो चाबी जिसे हम कह सकते हैं, खुशी की चाबी, प्यार की चाबी, आनंद की चाबी, ये सारी चाबी किसके पास है? मेरे अंदर है। लेकिन वो चाबी हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। कहाँ बाहर? जहां पर लोगों को सक्सेस मिली हुई है, सोचते ये बन जाएंगे तो शायद हमें खुशी मिल जाएगी, सम्मान मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, मैं ये करूंगा, इतने डिवीजन आएंगे, इतने अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, हमारी खुशी मिल जाएगी। हम सारे तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी चाबी गुम कहाँ हुई है। हमें लगता है जहाँ लोग सक्सेस है वही पर चाबी, वही खुशी है, वही प्यार है, वही शांति, वही सम्मान है, वही सब कुछ है। लेकिन सक्सेस सब कुछ कहाँ है? अंदर। पर अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंधेरा। अंदर अंधेरा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। और हम कहते हैं कि यहाँ तो हमें मिल ही नहीं सकती है शांति, खुशी मिल ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अंदर उजाला करने की जरूरत है। आपकी खुशी बाहर नहीं है, कहाँ पर है? अंदर है। आज हमारे पास देखा जाए सभी सेट हम खरीद देते हैं, लेकिन जो हमारे पास
हम फिर भी अपसेट हैं, और सेट हम कहाँ हो पाएंगे? अंदर से। उसके लिए मुझे अपने अंदर उजाला करना पड़ेगा। अभी हम सब ने दीपक जलाया, क्या जलाया? दीपक। हम अपने चर्च में भी देखते हैं, वहाँ पर कैंडल जलाने का, दीपक जलाने की प्रथा होती है कि वो जरूर जलाते हैं। तो वो कैंडल जलाना, उस ज्योति जो लौ जलती है, उस प्रकाश से हम मेडिटेशन करते हैं। तो देखिए, वास्तव में जो मेरे अंदर भी अंधेरा है, उसके लिए मुझे पहले उस के अंदर प्रकाश करना पड़ेगा। कहाँ प्रकाश करना है? अंदर। और अंदर कैसे प्रकाश होगा? जब मुझे ये पता चलेगा कि अंदर वो खुशी, प्यार, शांति सब कुछ है, लेकिन उसे जगाना कैसे है। तो उसके जगाने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे अंदर सबसे बड़ी पावर, हीरो नंबर 1 पावर, वो है एनर्जी, क्योंकि पावरफुल शक्ति, जिसे हम स्टार कहते हैं, जिसे हम सोल पावर कहते हैं। तो हमें अपनी ऊर्जा को, उस पावर, उस हीरो को, अपने नायक को जगाने की जरूरत है। तो वो नायक कैसे जागेगा? जब मैं ये रोज अनुभव करूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक हीरो, ऊर्जा हूँ, एक प्रकाश हूँ, एक ज्योति हूँ, जो कैंडल से प्रकाश निकल रहा है, वो एक ऊर्जा मैं हूँ। ये हाथ, पैर, नाक, कान, मुख, ये मैं नहीं हूँ। ये सिर्फ क्या है? ये मुझे जो एक काम करने की जैसे गाड़ी होती है, जैसे गाड़ी में ड्राइवर है तो गाड़ी के बैलून है, ठीक इसी प्रकार से इस बॉडी में ये ऊर्जा है तो इस बॉडी की बैलून है। जैसे ही वो हीरो हट जाएगा अंदर से, तो इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? इस हीरो की। तो मुझे किसको जगाना है? किसको जगाना है? अपने अंदर के हीरो को जगाना है। अगर आप हीरो नंबर 1 बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने अंदर की उस हीरो को जगाने की बहुत जरूरी बात है। तो सब जगाना चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा हीरो जाग जाए, अंदर की पावर जागृत हो जाए, और ये पावर अगर जाग गई तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर है। और हम ढूंढ कहाँ रहे थे अभी तक? कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर। लेकिन बाहर खुशी नहीं है, कहाँ है? अंदर है। अब हम करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव थॉट्स को लेकर बात, कि देखिए, अगर हम ये अपने अंदर की जब पावर को जगा लेंगे, ऊर्जा को जगा लेंगे, तो मेरे अंदर 7 वैल्यूज आ जाएंगे। कितने वर्चूस आएंगे? कितने गुण आ जाएंगे मेरे अंदर? 7 क्वालिटीज। तो उस 7 में फर्स्ट सुख। सुख सबको चाहिए, शांति, प्रेम, प्यार, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। ये सारी चीजें मेरे अंदर कब निकलेंगी बाहर? जब मैं अपने अंदर के हीरो को जगाऊंगी। जब तक मेरा हीरो नहीं जागेगा, अभी हीरो क्या कर रहा है? सो रहा है अंदर से। मेरी पावर अभी मर्ज हो रही है, और उससे मुझे क्या करना है? इमर्ज करना है। और जैसे जैसे हनुमान जी का तो एग्जाम्पल सब जानते हैं, हनुमान जी जब अपने उड़ने की पावर को भूल गए थे, आप सबको पता है, हनुमान जी जब उनको पार जाना था लंका, तो वो अपनी पावर को भूल गए। वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कैसे उड़ करके वहां जा सकता हूँ, मेरे से नहीं जाया जा सकता। लेकिन जब उन्हें ये याद दिलाया गया कि आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, आप तो बहुत बार उड़े हो, आप तो ये कर सकते हो, आपसे तो ये होगा, क्योंकि आपकी तो ऊर्जा ही है। जैसे जैसे उन्हें बार बार याद दिलाया, तो वो उड़ने लगे। ठीक है, तो युवा, आप सब कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? सब युवा है या नहीं है? बुजुर्ग तो नहीं है ना, सब युवा है ना। तो युवा को आप उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा? वायु। युवा माना वायु। तो वायु जितनी ताकत किसके अंदर है? किसके अंदर? आप सब उड़ सकते हो? कौन कौन उड़ सकता है? मैं बोलो, उड़ सकते हैं ना। आप में वो ताकत है। कहते हैं युवा के अंदर वो ताकत है कि पैर की ठोकर से भी पानी निकाल सकता है, वो युवा है। युवा माने नौजवान, नौजवानों जितनी ताकत है उसके
नौजवान, तो आपके अंदर इतनी सारी पावर है और इतनी बड़ी पावर का हम क्या कर रहे हैं, कितने परसेंट यूज कर रहे हैं, कितने परसेंट, 1 या 2% भी हम यूज नहीं करते अपनी पावर को, जबकि 100% हमारी पावर है। और जिन्होंने 1 या 1.5 या 2% भी यूज किया ना, वो दुनिया में इतने महान व्यक्तित्व में निखर गए और इतने महान जिनको हम याद करते हैं, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, ऐसे बहुत साइंटिस्ट भी रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें दादी जानकी, जिनकी माइंड स्टेप माइंड था, उनका इतना पावरफुल माइंड है ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी, जो कि 104 साल के, और वो इतनी पावरफुल माइंड की कोई भी संकल्प उनके अंदर जो वो सोचते बस उतना ही चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। क्योंकि वो कहती है मैं हेड हूँ, लेकिन मैं हेड की हेडेक नहीं लेती हूँ। हेड समझेंगे तो हेडेक होगी। मैं अपने आप को हमेशा युवा समझती हूँ और इसीलिए मैं हमेशा जवान हूँ, खुश हूँ। तो हम सब तो यहाँ कौन बैठे हैं, युवा बैठे हैं। हमारे लिए कुछ भी काम करना असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी पावर को याद करना है। क्या करेंगे हम सब, वायु युवा अर्थात वायु, कौन बैठे हैं सारे, वायु बैठे, पवन पुत्र हनुमान जी बैठे या नहीं बैठे, हाथ खड़ा करो, में कौन कौन पवन पुत्र हनुमान, आप सब नहीं हो हनुमान। हनुमान माने जो उड़ने वाले, जो सब कुछ कर सके, और आप 1 सेकंड में उड़कर कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो मेरे अंदर भी वो हनुमान जैसी पावर है जिसे मुझे अंदर से जगाना है। तो हमें ये मेडिटेशन अभी जो हम करेंगे, उसमें हमें अपने अंदर के हीरो को अंदर तक झांकना है। क्योंकि आज दिन तक हमने लोगों से बात करना सीखा, इनसे बात करना, फ्रेंड बनाना, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद से बात करना बड़ी डिफिकल्ट बात हो जाती है। लोगों से बात करना इजी है, लेकिन अपने आप से बात करना मुश्किल लगता है, इजी है, बोलो ये मुश्किल है, इजी है, ऐसे लग रहा है जैसे आप सबको क्या बात है, थक गए। आप तो युवा है ना, आपके लिए कोई भी चीज करना थकना आपके लिए है ही नहीं। युवा कभी थकता ही नहीं है, उसे कितना भी वर्क करा लो, युवा हमेशा एक्टिव रहता है। और आपको ये 2-3 दिन के अंदर हम देखेंगे कि आप इतने एक्टिव हो जाओगे, इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप फिर जो कहेंगे आप वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर की पावर जागृत हो जाएगी। तो अभी हमें अपने अंदर की ऊर्जा को देखने के लिए पहले खुद से बातें करनी है, क्योंकि लोगों से तो हम बात करते हैं लेकिन खुद से बात नहीं करते। तो हमें किससे बात करनी है, खुद से बात। हम चाहते हैं कि एक्टिविटीज पहले हम करा देते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। सही तैयार है सभी एक्टिविटीज के लिए? देखिए, पहली एक्टिविटीज हम करेंगे जिसमें हम जो आपको बोलेंगे वो आपको करना है। हम जितना बोलेंगे आपको उतना ही करना है। तैयार है सभी लोग? ओके। तो अभी हम बोलते हैं, जितना हम ताली बजाने के लिए कहेंगे, आपको जितनी ताली कहें आपको उतनी ही बजानी है। जितनी ताली बजाने को बोलेंगे आपको उतनी ही ताली बजानी है। 1, आपकी चेकिंग हो रही है, 3, गुड, 4, 5, 10, वेरी गुड। आप तो इतनी अच्छी हो, अपने लिए ताली बजा लीजिए।